Hello, good morning everyone. My name is Dr. Manish Tiwari, and in today's lecture I'll be discussing about erythroblastosis fetalis. What is erythroblastosis fetalis? What does it means? Listen, fetalis relate to fetus. Fetus, what is fetus? It is developing embryo, and what is erythroblastosis? Erythroblastosis means higher number of increased number of erythroblast cells. That means in developing embryo, developing fetus, if the erythroblast cells are increased highly in number, that condition will be known as erythroblastosis fetalis. कब होता है ये erythroblastosis fetalis? इसकी एक स्पेशल कंडीशन है जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तब. ठीक है, कब होता है ये? इट इज द केस ऑफ RH incompatibility. What does it means? Listen, RH, it is blood group, and incompatibility means mismatching. Actually, humans have mainly two type of blood groups. First one is ABO and second one is RH. There are many type of blood groups, but mainly two type of blood groups are found in humans. First one is ABO, mainly ABO is found, but RH is also found, and RH play a significant role in blood transfusion and other cases also. So we are discussing about RH. RH blood group है और RH की इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स मिसमैचिंग हो जाए तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता है. अब ये जो RH ब्लड ग्रुप होता है इसकी क्या कंडीशंस होती हैं? देयर आर टू कंडीशंस, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? RH positive represents RH antigens are present on the RBC. Here I am representing the antigen of RH. If RH antigen of RH is present on the RBC surface, that blood group will be known as RH positive, and if not present, RH antigen is not present on the RBC surface, then it will be known as RH negative. In the whole world, approximately 80% of the people have RH antigen on the RBC of their blood, so they are RH positive, and approximately 20% people are RH negative. It is the condition of RH blood grouping. If RH blood group mismatching takes place in between the fetus and mother, then the case of erythroblastosis fetalis will arise. How it arises? Let's discuss. Listen, this is I am drawing uterus of the mother. This is uterus of the mother. This is the upper part of the uterus where
fetus is being developed. This one is placenta. This is umbilical cord, and this one is developing fetus. अब अगर एक केस लेते हैं, ये जो मदर है, ये जो मदर है, she is Rh negative and the developing fetus is Rh positive. It means its RBC contain Rh antigen and mother's RBC does not have Rh antigens. अब इस केस में क्या होगा? एक मदर है, सी इज प्रेग्नेंट एंड वो Rh नेगेटिव है, और Rh नेगेटिव है इसका मतलब उसकी RBC सरफेस पर Rh एंटीजन नहीं है, लेकिन जो उसके यूट्रस में जो फिटस डेवलप हो रहा है उसमें वो Rh पॉजिटिव है, इसका मतलब है उसकी RBC की सरफेस पर Rh एंटीजन है। अब एक समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। होता क्या है कि अगर किसी की बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन, कोई केमिकल, कोई पॉल्यूटेंट आएगा तो उसकी बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी का ब्लड Rh नेगेटिव है, इसका मतलब उसके ब्लड में RBC की सरफेस पर Rh एंटीजेंस नहीं है, और अगर बाहर से उसमें Rh पॉजिटिव ब्लड आएगा, यानी कि उसकी बॉडी में Rh के एंटीजेंस आएंगे, तो उसकी बॉडी उसको भी फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगी एंड बॉडी विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन। ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम केस डेवलप हो रहा है। फिटस में Rh पॉजिटिव ब्लड है, यानी उसकी RBC की सरफेस पर Rh पॉजिटिव Rh के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं, और जबकि मदर का ब्लड Rh नेगेटिव है, तो मदर का ब्लड इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सकता है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा, mother's blood and fetus blood is separated. प्लेसेंटा की वजह से मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड सेपरेट रहते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते हैं, तो ये समस्या नहीं होती है। मदर का ब्लड कभी भी फिटस के ब्लड में नहीं मिक्स होता है, तो जब मिक्स नहीं होगा तो ये Rh नेगेटिव वाला ब्लड इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की कंडीशन में नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर डिलीवरी हो जाती है इस बच्चे की, ठीक है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी यहाँ तक तो फिटस का ब्लड भरा होता है, यहाँ तक अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, यहाँ तक फिटस का ब्लड भरा होता है। डिलीवरी के दौरान चांसेस होते हैं कि फिटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, ठीक है। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही फिटस का थोड़ा सा भी ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स होगा, द बॉडी एंड ब्लड ऑफ द मदर विल क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट Rh। वो Rh के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगेगा, ठीक है, और जो थोड़ा सा ब्लड अभी गया है उसकी RBC को मार देगा। लेकिन अब इस मेमोरी को वो बना के रखेगा, एंटीबॉडीज मेमोरी बनाती हैं, वो मेमोरी बनाकर रखेंगी, और इन ये जो एंटीजन Rh आए थे इनके खिलाफ एंटीबॉडीज की मेमोरी बनाकर वो रख लेगी। अब समस्या होगी सेकेंड के दौरान। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान जो फिटस डेवलप होना स्टार्ट किया, अगर वो भी Rh पॉजिटिव बाई चांस हो गया, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? जैसे ये डेवलप करना चालू करेगा, इसके अंदर Rh पॉजिटिव ब्लड है,
तो मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड तो नहीं मिक्स होता है, लेकिन मदर के ब्लड से एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस के ब्लड में आ जाते हैं, एंटीबॉडी क्रॉस कर लेते हैं। तो वो एंटीबॉडीज एंटी-RH एंटीबॉडीज जो मदर के ब्लड में बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फिटस में आ जाएंगे और फिटस की आरबीसी के ऊपर जो उनको एंटीजेंस मिलेंगे उनसे वो रिएक्ट करने लगेगा एंड दैट एंटीबॉडीज विल किल द आरबीसी ऑफ फिटस की आरबीसीज को वो किल करने लगेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, फिटस के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होने लगेगी, एनीमिया होने लगेगा, जॉन्डिस होने लगेगा और सीवियर कंडीशन में फिटस डेड भी हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज hemolytic disease। hemolytic disease means ब्लड से रिलेटेड सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज hemolytic disease। erythroblastosis fetalis, hemolytic disease, this one is the condition of RH incompatibility। RH ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी, मिसमैचिंग हो जाए तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। कब होती है? स्पेशली जब मदर RH नेगेटिव हो और उसके अंदर डेवलप करने वाला फिटस RH पॉजिटिव हो, तब ये होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर RH पॉजिटिव फिटस डेवलप हुआ तो वो मारा जाएगा। मदर की एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस में आएंगी और उसको किल कर देंगी। बात समझ में आ रही है? क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। फर्स्ट डिलीवरी जब हो जाए उसके 72 आवर्स के अंदर हमें बाहर से एंटी-RH एंटीबॉडीज देनी होती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एंटी-RH एंटीबॉडीज जब हम मदर के ब्लड में डाल देंगे तो वो जाके जो फिटस का ब्लड है उसकी आरबीसीज को किल कर देंगी। जब उसकी आरबीसीज को किल कर देंगी तो मदर को खुद से एंटीबॉडीज बनाने की नौबत नहीं आएगी एंड मदर जब खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तो मेमोरी भी नहीं बनाएगी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान फिटस को हार्म भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।